यस, फंक्शंस टॉपिक पढ़ा पूरा. इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक. Okay, so within a short period, I'll just revise what we have done. Okay, what do you mean by function? Recording in Starting progress. से मैं थोड़ा revise कर लेता हूँ. Okay, what is a function? A and B are two non-empty sets. Then a function from A to B is denoted as in this symbolic form, isn't it? ये अभी सब मालूम है, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ. A function f from A to B will be denoted by this. This f will be said to be a function from A to B if this f is a subset of cross product A cross B, and for every x belongs to A, there exists unique y belongs to B such that x comma y is in f. So f actually क्या है? Subset of A cross B है. For every x in A, there is a unique y in B such that x comma y belongs to f. We know that this y is denoted as fx. We know that this function is denoted in diagrammatic form this way. X is here in A, B is here, f. So x goes to y. So x comma y belongs to f है, तो diagrammatic form में x से arrow mark towards y करेंगे और इसको fx denote करते हैं. So whenever you write y equal to fx, it means x comma y belongs to f. What do you mean by f? F is a subset of A cross B. This f satisfies this condition, then it is a function. We denote that function by symbolic form में ऐसा, मतलब this way. Okay, याद आ रहा है सब? ये सब किया है. So f is a function from A to B. ऐसा वाला function नहीं हो सकता, isn't it? For every x there should be unique y. So x के लिए दो अगर होगा, so this is not a function. Okay. What is A called? चलो फटाफट रिवाइज करो. A को क्या बोलते हैं? डोमेन. डोमेन बोलते हैं. B को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ. कोडोमेन. कोडोमेन. करेक्ट. हाँ. Y को क्या बोलते हैं? Y. रेंज. नहीं, रेंज तो बाद में आएगा ना. Y corresponding to x, y को क्या बोलते हैं? Y is image of x. Y is called image of x. इसको क्या बोलते हैं? Image of x under f, isn't it? और x को क्या बोलेंगे? अगर x y को प्री इमेज. इसको प्री इमेज बोले. इसको प्री इमेज ऑफ y under function f, ऐसा बोले. So here they are images. Here it is pre images. But sometimes the functions may be such that some elements may not be any image. ऐसा भी हो सकता है. This is also a function. This is also a function. So ये element image है, ये element image है, ये element image है. This is not an image of any element. This is not an image of any element. Such type of functions are also possible, isn't it? Now one element here can have two pre-images, but every element here will have unique image. Unique image. Every element here has unique image, but any element here may have more than one pre-image. Function को one one कब बोलते हैं? One one. When do we say that the function is one one? When do we say that the function is one one? When every element is, when two distinct elements here goes to distinct images. Two distinct element, दो अलग अलग element, दो अलग अलग element images में जाए. ये भी possible है ना? ऐसा भी possible है. ये भी function है. But ऐसा नहीं होना चाहिए. Two distinct elements in A will have distinct images. It means f of x1, if your images are equal, then your three images are equal. It means यही condition हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि negation of this, that means x1 not equal to x2, contrapositive statement लिखता है. इसका contrapositive ये होता है. Whenever x1 is not equal to x2, that means two different elements in A goes to different images. Goes to different images. x1 goes to fx1, x2 goes to fx2, and they are different. As ये और ये condition same. क्यों? Because P implies Q और negation Q implies negation P. ये दोनों statement same. ये दोनों statement same होता है, isn't it? This is the implied statement. This is contrapositive. ये दोनों equivalent statement है.
तो इंजेक्टिव के लिए या तो ये प्रूव करने का या तो ये प्रूव करने का, दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव। ऑन टू का मतलब क्या होता है? Sir, distinct element of in codomain have distinct preimage. रॉन्ग, वो तो इंजेक्टिव हो गया बेटा, वो इंजेक्टिव हो गया ना। ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब, अब ये फंक्शन ऑन टू नहीं, isn't it? Why? Because this element does not have any pre-images. Every element here should have pre-image. तो अगर ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो we'll say that this element is without any pre-image. Hence this function is not on to, isn't it? This y here does not have any pre-image. But अगर ऐसा कुछ एलिमेंट है ही नहीं तो हम इसको क्या बोलेंगे? Yes, this is on to. Why this is on to? Because every element in codomain has at least one pre-image. तो ये फंक्शन 1 1 भी है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ऑन टू भी है। 1 1 तो है ही ना, अलग अलग एलिमेंट पे जा रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू भी है। 1 1 function is also called injective function. On to function is also called surjective function. So this function is called injective as well as surjective function. That means 1 1 on to function. Such type of functions are called as what? A Bijective. function which is both इंजेक्टिव as well as surjective को क्या बोलते हैं? दोनों अगर रहेगा तो क्या बोलते हैं उसका? Bijective. Bijective, correct. Is 1 1 and on to, then this function is called bijective. ये function को हम bijective, okay? अगर ऐसा रहेगा तो बोलेंगे 1 1 है लेकिन on to नहीं। This is 1 1 but not on to, isn't it? Now this is on to function. This is on to function क्योंकि every element here has pre-image, but it is not 1 1. 1 to 1 नहीं जा रहा है। Two distinct element does not give two distinct images. Same image में जा रहा है, इसके लिए 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं होगा, but on to होगा, okay? So this is on to but not 1 1. So there are functions which is 1 1 but not on to but not 1 1. It might be both possible that it is neither 1 1 nor on to. It might be possible that it is both 1 1 as well as on to. But the functions which are both 1 1 as well as on to are called bijective functions, isn't it? Range of f हमने defined किया। What was range of f? Range of f was defined as the set of all possible images. जो images होगा fx, okay, for every x belongs to t. Okay, so set of all possible images are called range of f. So ये range, okay, so range of f. Okay, so a range of f is defined as what? Set of all possible images. ये इसको range of f. Range of f is denoted as f of e. Then we have defined what? We have defined अच्छा, range of f अगर same as b होगा, suppose ये extra element नहीं है, okay, so range of f, that is f of a, is same as b. Can you see sub element b का इसी में, extra element is not there, that means this set and this set is same. Then what do we say? Whenever range of f is same as b, then which type of function it is? 1 1 या on to? So on to. On to. तो जब भी range of f अगर b हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, तो we'll say that f is on to function. Okay, तो range of f अगर b होगा तो we say that it is on to. Now whenever it is not equal to b, मतलब ऐसा extra element is there, any एक extra element भी रहेगा तो भी हम बोलेंगे not equal to. And then I'll say that the function is not on to. Why it is not on to? Because ये element का pre-image है, मतलब range of f is not same as s, right? Then we have defined direct image of a subset of domain. Now whenever you have f from a to b and s is a subset of e, the same notation जैसा अभी किया था वैसे ही अगर subset के लिए दिया तो we call this as direct image of s. Okay, so direct image क्या होता है? वही है, definition वही है, f of x where x belongs to s के जगह पे a आ गया तो range हो जाएगा, right? Now suppose this is the set. Okay, suppose this is the set, then
ये एस है, तो इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस ऑफ एस, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इमेज ऑफ एस, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इमेज ऑफ एस. Very simple, isn't it? This is called direct image of S. So what is range of F? Range of F is also called as direct image of domain. Okay, so range of F is also called as direct image of domain. क्योंकि range of F अपने ऐसा define किया. A की जगह पे अगर सबसेट लिया तो लिखेंगे डायरेक्ट इमेज ऑफ सबसेट S of T. Now suppose T is a subset of B. Okay, now suppose T is a subset of B. Then inverse image हमने define किया, isn't it? Suppose ये set है, okay. Suppose this is T, okay. Then अगर T subset of B है तो इसका सब प्री इमेजेस कलेक्ट कर दें. तो इसका प्री इमेजेस कलेक्ट करेंगे तो नोटेशन क्या होगा? इनवर्स इमेज ऑफ T, इनवर्स इमेज ऑफ सबसेट T ऑफ B. ये कैसे लिखते हैं इसको? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल x in A, all possible x in A, such that इसका जो इमेज है fx should be in T, such that f of x belongs to T. ऐसा होना चाहिए. This is your definition. Inverse image of subset T, okay, of subset T in B. ठीक है. इनवर्स इमेज मतलब क्या है? यहाँ इसका इमेज प्री इमेज क्या है? सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस है. प्री इमेजेस को हम इनवर्स इमेज, ये इमेज है, इनवर्स इमेज मतलब प्री इमेजेस. तो इसका प्री इमेज ये, इसका प्री इमेज ये भी है और ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस सेट इज अवर दिस सेट. इन दिस केस अगर T ये है तो हमारा F इनवर्स ऑफ T ये हो जाएगा. अगर T ये है तो ये. आई होप याद आ रहा है सब, समझ में आया? Yes, sir. Can anybody tell me what is inverse image of B कोडोमेन? अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होगा ना यहाँ पे तो भी चलेगा. इसका प्री इमेज लेने का ये हो गया, इसका प्री इमेज कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लेने, छोड़ दो. इसका प्री इमेज ये दो है तो डायरेक्टली ये सेट हमारा है. तो इसका प्री इमेज, इसका प्री इमेज यही है, इसका प्री इमेज है ही नहीं तो इग्नोर इट. नाउ कैन यू टेल मी इनवर्स इमेज ऑफ कोडोमेन अगर लेते हैं, कोडोमेन, तो क्या मिलना चाहिए? हमेशा Domain. डोमेन मिलना चाहिए. हमेशा ये ट्रू होता है. दिस इज ऑलवेज ट्रू. दिस इज ऑलवेज, दिस इज नॉट ऑलवेज, दिस इज नॉट ऑलवेज. एफ ऑफ ए बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर ऑन टू हुआ तो इक्वल होगा. बट जब इनवर्स इमेज लेंगे, इनवर्स इमेज ऑफ बी लेते हैं, पूरा बी का इनवर्स इमेज लेते हैं, तो हमेशा ये होगा, ये हमेशा ट्रू होगा. इनवर्स इमेज ऑफ बी हमेशा ए होगा. क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट हियर हैज टू हैव प्री इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट. क्योंकि बाय डेफिनेशन एवरी एलिमेंट हियर हैज इमेज. तो हम इमेज का प्री इमेज निकालेंगे तो ये सब एलिमेंट कवर हो जाएगा बाय डेफिनेशन. इजंट इट सिंपल लॉजिक? क्योंकि डेफिनेशन बोल रहा है ना कि एवरी एलिमेंट हियर हैज अ इमेज, यूनिक इमेज. और जब इमेज का प्री इमेज निकालेंगे, इनवर्स इमेज निकालेंगे, तो ये सब कवर हो जाएगा, पूरा ये कवर हो. इसके लिए इनवर्स इमेज ऑफ सेट डोमेन को डोमेन करते हैं तो पूरा सेट मिलता है. isn't it? फिर हमने बहुत सारे नोट और वो सब लिखा था. अभी मैं एक एक करके सब नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा. whenever you have x belongs to s, it implies fx belongs to fs. ये हमने सब नोट्स में दिया है. but converse is not, okay, converse is not true. whenever x belongs to s, तो ये fs में तो होगा ही. ओके, fs में तो होगा ही. ऐसा, ये ऐसा तो हमेशा ट्रू. बट कभी भी अगर fx यहाँ पे है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहां से भी आया हो. तो अगर हमने बोला कि f of a belongs to f of s, I can't say directly that a belongs to s. ऐसा उल्टा नहीं बोल सकता. It may be possible that a is outside s. So converse is not. Whenever your fx
मतलब f of a, let us say f of a belongs to fs, तो I can't say a belongs to s. Okay, ऐसा converse is not. ये सब हमारा हो चुका है, but anyway, now whenever t is a subset of b, t यहाँ पे b. Okay. Then whenever I say f of x belongs to t, it is always if and only if x belongs to inverse image of t. और ये कहाँ से मिला? ये तो by definition हो रहा है. By definition क्या होता है? It is all possible x belongs to a such that f of x belongs to t. ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझ जाए. जब भी fx यहाँ पे होता है तो डेफिनेशन बोलता है कि x हमारा x कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे, इनवर्स इमेज ऑफ t. तो अगर fx यहाँ पे है बिलोंग्स टू t, अगर fx बिलोंग्स टू t है तो x यहाँ पे होना चाहिए बाय डेफिनेशन. ओके, नाउ नोट दैट व्हेनेवर x बिलोंग्स टू दिस, अगर fx यहाँ पे है तो दिस इंप्लाइज दिस. नाउ दिस विल इंप्लाई दिस बिकॉज व्हेनेवर x बिलोंग्स टू इनवर्स इमेज ऑफ t, जब भी x यहाँ पे होता है तो कन्वर्स इज आल्सो ट्रू. व्हाई? क्योंकि बाय डेफिनेशन व्हेनेवर x हियर, व्हेनेवर x इज इन दिस सेट, तो बाय डेफिनेशन fx बिलोंग्स टू t. तो हमारा डेफिनेशन ही इस तरफ है कि whenever you look at this statement, ये है तो ऐसा लिख सकते हैं, ये है तो ऐसा लिख सकते हैं. So whenever you want to prove theorems, तो theorem में कभी भी अगर आपने ऐसा लिखा कि suppose T1 union T2 है या ऐसा, तो कभी अगर ऐसा लिखा x belongs to this, तो आप बिंदास ऐसा लिख सकते हैं. That means you can write this. I hope you're following what I'm saying. Now whenever you have this way, you can always write this way also. Why? Because I'm saying that this is true. This statement is true. So all this we have discussed, right? उसके बाद हमने constant function, identity function वो सब किया है, right? Projection functions वो सब रिवाइज नहीं करूंगा, आप नोट्स में देख लेना, right? उसके बाद हमने क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व किया, जहां पे फंक्शन इज इंजेक्टिव कैसे चेक करते हैं, ऑनटू कैसे चेक करते हैं, कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म करके भी यूज किया. ओके, तो बहुत सारा एग्जांपल्स हमने किए. ओके, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इन डिटेल. ओके, नोट्स में भी दिया हुआ है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होमवर्क भी दिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं उसको, राइट? ओके, उसके बाद हमने कुछ थियरम किया था. ओके, तो वो थियरम, लास्ट थियरम जो हमने प्रूव किया है, दैट आई हैव प्रूव्ड इट. But these two theorems I'll just leave it. I'll not prove it. Okay, ये true है करके मेरे notes में proved है. Okay, in my notes I have proved it. If time permit, हाँ बोलो. जो थियरम मैंने प्रूव किया है क्लास में, वो थियरम आपको थियरी में आ सकता है अगर कॉलेज स्टार्ट हुआ. If the college starts, I think 23rd से कॉलेज स्टार्ट होगा शायद, तो 22 नहीं तो 23rd से स्टार्ट होगा, तो तब जाके ये सब थियरी एग्जाम में पूछा जाएगा. तो जो थियरम मैं विदाउट प्रूफ दे रहा हूँ, सपोज ये विदाउट प्रूफ है, नोट्स में दिया है proof, ये विदाउट प्रूफ है, ये विदाउट प्रूफ मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं नहीं पूछूंगा प्रूफ में, ठीक है? बट जो प्रूफ मैंने क्लास में किया है वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग को आना ही चाहिए प्रूफ. और इनफैक्ट क्या है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, दिस चैप्टर इज वेरी बिग, सो आई विल स्किप सम थियरम्स का प्रूफ. So whichever theorem का proof I am skipping, I will not ask in exam. But at least you should know the statements कि कैसा है. Okay? तो image of S1 union S2 is same as image of S1 union of image of S2. मतलब equality holds here. Here equality does not hold. Intersection में equality does not hold. ये सब मैं आपको किस में पूछ सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ना, this is equal always. ये तो wrong हो गया ना, ये wrong हो जाएगा. this is equal कब होगा? ये equal तब होगा जब f is injective होगा. whenever f is injective, then only this is possible. Okay, so ऐसा. So if you want, we can take some examples. Okay, A और B है. अगर f इंजेक्टिव नहीं लेता होगा, सपोज f is not इंजेक्टिव, है ना, ऐसा.
अब ऐसा लेते हैं, ये S1 लेते हैं, S1 में ये भी लेते हैं. Let us take S1 as this and let us take S2 as this. Okay, तो f of S1 क्या होगा? f of S1 ये हो जाएगा. देखो ध्यान से देखो, f of S1 क्या होगा? इसका इमेज, इसका इमेज, f of S1. f of S2 क्या हो जाएगा? इसका इमेज और इसका इमेज. f of S2 ये होगा इसका. ऐसा. तो f of S1 इंटरसेक्शन S2, S1 इंटरसेक्शन S2 क्या है? ये बड़ा वाला. ओके, लेट अस से A. इसका इमेज क्या है? ये f of S1 इंटरसेक्शन S2. f of S1 intersection S2 is f of A, मतलब ये, which is same as f of S2, ये वाला. But this is a subset of f of S1 intersection S2. Now f of S1 intersection S2, कोई बताएगा ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है, ये इसके अंदर है, राइट? तो f of S2 इंटरसेक्शन f of S1 क्या होगा? f of S2 होगी. f of S1 intersection f of S2 will be smaller set f of S2. Now this is equal to this. That means this is also true. तो हो गया, true हो गया. ये equal to मिला है, ये equal to मिला, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा मिला. और ये क्या है? This is nothing but f of S1 intersection f of S2. So can you see that always it will be this way? Converse is not true. What do you mean by converse is not true? Now f of S1 intersection f of S2 लेते हैं, तो it will not be always f of S1 intersection S2. जो यहाँ पे मिला है वो इक्वालिटी मिला है. ये क्या मिल गया हम लोग को? इक्वल मिला ना. दूसरा एग्जांपल लेना चाहिए. हाँ, इक्वल भी मिल सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है. कन्वर्स इज नॉट ट्रू मीन्स इट मे बी पॉसिबल दैट इट इज इक्वल. मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. S1 and S2 I'll take this way, and then f of S1 intersection S2 is this. Okay, so I'll take this example. इसमें इक्वल मिल रहा है, राइट? So I'll give an example where इक्वल नहीं मिलेगा. मतलब ये this is not a subset of that. This is S1. This is S2. What is S1 intersection S2? कोई बताएगा? What is S1 intersection S2? Null set. S1 intersection S2 is null set. What is the image of this null set? F of empty set ना? F of empty set. क्या होगा? कुछ नहीं है ना. empty set का image क्या होगा? कुछ नहीं होगा. It is an empty set. Are you following this? It is an empty set. This set is empty set. Now what is f of S1? f of S1 is this set. f of S2 क्या है? ये set है, तो singleton set. What is this set? f of S1. What is this set? f of S2. मतलब दोनों equal है. What is f of S1 intersection f of S2? It is same set, y. दोनों same set है, y. But can you see that this set, can I say it is a subset of empty set? ये empty set है क्या? नहीं सर. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? Converse is not true. ये जो set है f of S1 intersection f of S2, which is y, it is not always subset of f of S1 intersection S2. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, S1 S2 अलग अलग होगा और empty set हो जाएगा, तो प्रॉब्लम. तो हमेशा ट्रू नहीं होगा, कभी ट्रू होगा कभी नहीं होगा. तो इसके लिए कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ना कन्वर्स इज नॉट ट्रू बोलने के लिए एक काउंटर एग्जांपल देना होता है, वो काउंटर एग्जांपल होगी. तो कन्वर्स कब ट्रू होगा? जब इंजेक्टिव. अगर इंजेक्टिव रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर इंजेक्टिव रहेगा तो क्या होगा? इफ इट इज इंजेक्टिव देन इट इज ऑलवेज ट्रू. अगर ऐसा सब रहेगा तो इंजेक्टिव. ओके, सो दिस इज S1.
This is S2. Okay. So f of S1 and f of S2 is this. So f of S1 intersection S2. S1 intersection S2 ये है, S1 और S2 का intersection. तो इसका इमेज ये है, तो ये वाला. ओके. अच्छा, f of S1 क्या होगा? 1 2 3. ये f of S1. What is f of S2? इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, तो ये दोनों f of S2. तो मुझे बता f of S1 इंटरसेक्शन f of S2 क्या है? फिर से वही. आई होप यू आर फॉलोइंग. इंजेक्टिव रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. S2 का प्री इमेजेस ये दो है, तो ये f of S2 हो गया. ये 1 2 3, इसका तीनों इमेजेस ये f of S1 हो गया. इसका और इसका इंटरसेक्शन ये हो गया y. So f of S1 intersection f of S2 y. f of S1 intersection S2 क्या है? ये. तो इसका इमेज क्या है? y. तो ये S1 intersection S2 का इमेज set is this. I hope you are following this. ये सब theorem true है. So what you do is you go through this. इसका सब डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिखाया है. Converse is not true at all. Okay. इसमें भी मैंने डायग्राम ड्रॉ करके नोट्स में दिखाया है. Converse is not. Can you see implies है, लेकिन यहाँ पे उल्टा भी ट्रू है. ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, लेकिन इफ एंड ओनली इफ. बट यहाँ पे ट्रू कब होगा? जब f is on true. यहाँ पे उल्टा कब ट्रू होगा? जब f is injected. ये वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ. Can you see that if S1 is a subset of S2, then this is a subset of this. But ये converse will be true if f is injected. यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ सिमिलर. ये कन्वर्स तब ट्रू होगा जब f is on true. तो ये सब आप नोट्स में देख लो, एक बार गो थ्रू करो. ओके. अच्छा, यहाँ पे जो इसका कन्वर्स पार्ट इज नॉट ट्रू, ये मैंने इसके प्रूफ में ड्रॉ नहीं किया है. ये जब एक्सप्लेन किया था ना इमेज सेट, वहां पे कन्वर्स इज नॉट ट्रू प्रूव किया है मैंने. तो इसके लिए ये प्रूफ करते समय यहाँ पे नहीं प्रूव किया. ओके. बट मेरे ख्याल से इसका नहीं प्रूव किया, इसका नहीं दिखाया था, तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है. कन्वर्स इज नॉट. एनीवे, यू गो थ्रू द नोट्स, try to understand the theorem statement. So what I expect is you try to study this, self study. खुद पढ़ो, समझने की कोशिश करो. Okay. So I'll not do proof because lots of theorems are remaining, lots of definitions are remaining in the syllabus, and you have exams in first week of December. So to complete the portion will be very easy. So let us start with composite function. मैं नया definition शुरू कर रहा हूँ. Composite function. Okay. Composite function आपने सुना है SY में. और composition of functions. We also call it as composition of functions. Okay. So what is definition of composition of functions? So composition of functions के लिए we require two functions, right? Then only we can compose. Composition मतलब क्या? Combine करना है. Now if you have three sets A, B, C, non-empty sets, and f is a function from A to B, and G is, please mute yourself, and G is a function from B to C. F is a function from A to B and G is a function from B to C. Whenever I say it is a function, what does this mean? It means every element in A will have a unique image in B, such that blah blah blah. वो सब satisfy कर रहा है. ये दोनों function. But can you see that this set and this set is same? Means domain of G is same as codomain of F. डोमेन ऑफ जी क्या है? बी. कोडोमेन ऑफ एफ क्या है? बी. या फिर उल्टा बोलो, कोडोमेन ऑफ एफ इज सेम एज डोमेन ऑफ जी. तो व्हेनेवर दिस हैपेंस, ओके, ये फंक्शन एफ है और ये जी, मतलब कोडोमेन ऑफ एफ ये है. व्हाट इज डोमेन ऑफ जी? डोमेन ऑफ जी इज बी. व्हाट इज कोडोमेन ऑफ एफ?
B, तो अगर ये दोनों मैच होता है, then I will say that composite function of G and F is defined. I can combine these two functions, और notation हम इसका ऐसा देंगे. I can define a function from A to C and will denote it by G, small circle draw करेंगे, okay, छोटा सा circle, and G circle F. So we can define a function called G circle F, and it will be a function from A to C. Okay, it will be a function from A to C, and this function is defined this way: G circle F of X is nothing but G of image of X, G of F of X. So image of Fx under G. जैसा for example यहाँ पे F takes X to what? Fx. X का इमेज क्या होगा? X का इमेज Fx होगा. X का इमेज Fx होगा. बट Fx कहाँ पे है? डोमेन ऑफ G में. Fx किधर है? डोमेन ऑफ G में. तो Fx का भी इमेज होगा ना? Fx का भी इमेज होगा अंडर फंक्शन G. तो अंडर फंक्शन G Fx का इमेज होगा. तो हमारा फंक्शन मिला नया G ऑफ F ऑफ X, और इसको डिनोट किया G सर्कल F ऑफ X. सो नोटेशन ऐसा करेंगे. So we are defining a new function called G circle F. So what is definition? Definition says, ये मैंने diagrammatic representation से explain किया. But let us say now F is a function from A to B and G is a function from B to C. If domain of G and codomain of F, या फिर codomain of F and domain of G are same, then what is defined? Composite function G circle F is defined. G मतलब डोमेन जिसका है उसका नाम पहले बोलने का, G circle F. Now G circle F will be a function from F. F से स्टार्ट होगा. F से स्टार्ट होगा मतलब डोमेन A से स्टार्ट होगा. A से एंड हुआ B में, फिर B से कहा गया C में. तो F से यहाँ याद कैसे रखेंगे? G circle F, F का डोमेन A, और एंड कहाँ पे करेंगे? A to B and then B to C. Okay, if domain of G and codomain of F is equal, then G circle F from A to C is a function defined as this way. Okay, G circle F is a function defined from domain A to codomain C, defined this way, is called composition of G and F. Composition of two functions G and F. डेफिनेशन समझा क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं. Have you followed the definition? चलो मुझे बताओ अभी क्या है. अभी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ. मुझे बताओ डोमेन कोडोमेन एंड वो सब मिक्स करके सपोज मैंने डिफाइन किया है एज f of x is equal to x square minus x plus 1, and G I define from R to let us say C, and I define as f of a is equal to AI for every a belongs to. चलो मैंने दो फंक्शन डिफाइन किया है. अब मुझे बताओ ये और ये मैच हो रहा है, isn't it? तो I'll start with what? ये डोमेन, ये कोडोमेन है, मतलब यहां से स्टार्ट ये, फिर यहां से ये स्टार्ट है. तो I'll say always डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख के देखूंगा इसे. N to R, and in fact this is same. तो R to C जा रहा है, ये G है. तो whenever you have two functions और कुछ मैच हो रहा है ऐसा, तो कभी भी ऐसा लिख के देखना तो आपको इजी लगेगा. अब कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? ऐसा डिफाइंड. ये फंक्शन का नाम क्या होगा? F सर्कल G नहीं, G सर्कल F. G सर्कल F. Now G सर्कल F is a function जो F का डोमेन से स्टार्ट होता है. F का डोमेन से स्टार्ट होगा और एंड होगा G का कोडोमेन से. And how it is defined? G circle F of X is defined as
g of bracket of f of x. Okay, have you followed this much जो मैंने बताया अभी? Yes, sir. ओके, डिफिकल्ट लग रहा है? जो मैच होगा ना ऐसा, तो ये कोडोमेन है, तो पहला ये ड्रॉ करते हैं n2r, फिर r से स्टार्ट है ना c, ऐसे। तो ये लिखने के बाद कभी भी याद रखना g सर्कल है, ऐसा ये डिफाइन होगा, g सर्कल है। और ये फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है? f का डोमेन से ना, तो f का डोमेन से n से c की तरफ है, ऐसे, राइट? अब कोई मुझे बताएगा ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, जैसा मैंने यहाँ डिफाइन किया है ऐसे। What is f of x? f of x तो ऐसा होगा ना, f of x will be what? xi, ये f of x है, ये अगर x है तो यहाँ पे x आएगा, xi, isn't it? हाँ, तो ये f of x है, तो f of x क्या हो जाएगा? xi हो जाएगा। तो f of x की जगह पे मैंने क्या लिखा है? xi, f of x की जगह पे xi। अब ये क्या है? g of y टाइप, ओके, सॉरी, ये g of, सॉरी, f ये था, g ये था ना, सॉरी, fx ये था, ये g था। तो f of x क्या है? f of x is x square minus x plus 1। f of x क्या है? x square minus x plus 1। Now g of that, नहीं, one second, okay, now can anybody tell me g of this will be what? g of a is ai, a के जगह पे ये है, this is my a, this is my a, g of a is ai। आंसर क्या आएगा? What will be answer here? फंक्शन कैसे दिखेगा? Come on, fast. into I, sir. तो g of something, वो something into i होना चाहिए, क्या आएगा आंसर? How the X square function? minus x plus 1 into I. करेक्ट, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 i, ये हमारा फंक्शन होगा। तो माय कंपोजिट फंक्शन g सर्कल f ऑफ x इज नथिंग बट, समझा कंपोजिट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? ओके, Yes, sir. f ऑफ x की जगह पे ऐसा आ गया डायरेक्ट। से दो अलग अलग तरीका है लिखने का, अभी मैं अलग तरीके से बता, g के अंदर क्या है? fx, तो g के अंदर a होता है, सपोज, तो ये a, तो g ऑफ a इज ai, तो ये a है, तो ai, g के अंदर जो भी रहेगा, g के अंदर जो भी रहेगा डायरेक्टली ai, तो fx आ। अब fx क्या है? fx इज दिस, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू i। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपने g को ऑपरेट किया, ओके, पहले g को ऑपरेट किया और ऐसा लिखा, फिर उसके बाद fx का फंक्शन ऑपरेट किया ऐसा, आंसर वही मिलेगा, इट डजंट मैटर। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। मैं दो मेथड से आपको बता रहा हूं कि या तो पहले g फंक्शन आप पूरा एक्सपांड करो और फिर fx एक्सपांड करो, या फिर fx इसके अंदर एक्सपांड करो और फिर g यूज करो, चलेगा। Have you followed this much? Then I'll ask you one question. Yes, This much sir. is clear? Okay. So now my question to you is whether this is defined. उल्टा define कर सकता हूँ क्या? Can I define composite function f circle g? अगर मुझे f सर्कल g डिफाइन करना है तो g से स्टार्ट करना पड़ेगा। f सर्कल g, अच्छा मैं चेक करके बताता हूँ, ओके, g से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट, g से। तो g कहां से स्टार्ट हो रहा है? r से, और c पे आ रहा है। अच्छा, अब c से स्टार्ट करना पड़ेगा और r तक मतलब दूसरा जगह, लेकिन ये तो n से स्टार्ट हो रहा है, f तो n से स्टार्ट हो रहा है। कैन यू सी ये मैच नहीं हो रहा है? ये मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। आपको समझा ये डिफाइंड क्यों नहीं है? कैन यू टेल मी व्हाई f सर्कल g इज नॉट डिफाइंड? as
एज कोडोमेन ऑफ जी, जी से स्टार्ट होगा ना, जी से स्टार्ट होगा, तो डोमेन टू कोडोमेन, फिर कोडोमेन शुड बी माय डोमेन ऑफ एफ एज कोडोमेन ऑफ जी, मतलब कोडोमेन ऑफ जी जो सी है इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। आपसे पूछा गया है कि एफ सर्कल जी डिफाइन क्यों नहीं है, आपने डायग्राम ड्रॉ करके देखने की कोशिश किया, जी जी कहां से स्टार्ट होता है, आर टू सी से, फिर एफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, एन टू आर से, तो ये मैच नहीं हो रहा है दोनों, तो इसका मतलब क्या डिफाइन नहीं है, एफ सर्कल जी डिफाइन नहीं है। एफ सर्कल जी डिफाइन क्यों नहीं है, रीजन दो। रीजन ये है कि जी का कोडोमेन इज नॉट सेम एज डोमेन ऑफ एफ, तो हेंस एफ सर्कल जी इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी आपको से ऐसा पूछा तो डायग्राम ड्रॉ करके करो तो आपको इजी लगेगा। कुछ समझ में आया, डिफिकल्ट है? हैव यू फॉलोड दिस? Yes, sir. ओके, तो बाय डूइंग दिस आई विल से दैट जी सर्कल एफ अगर डिफाइंड है तो कंपलसरी नहीं है कि एफ सर्कल जी भी डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब जी सर्कल एफ अगर फंक्शन है तो हो सकता है एफ सर्कल जी फंक्शन ही ना हो। तो इसके लिए दिस कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन ही नहीं होता, तो ये कम्यूटेटिव नहीं भी हो सकता है। ओके, सो आई जस्ट से इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या, उल्टा कर सकते हैं। ओके, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। सर एक एग्जांपल हम लोग को दीजिए ना प्लीज। लिखना है आपको? हाँ हाँ हाँ, चलो लिखते हैं, चलो। ओके, तो मैंने नोट्स में सब दिया है अच्छे से, बट एनीवे इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट राइटिंग दिस। क्वेश्चन लिखो, चलो। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज and g be a function such that g of a equal to a square. Okay, now my question to you is, इसके पहले वाला जाना दो, वो तो नोट्स में भी दिया है मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। अभी ये सेकेंड एग्जांपल, कैन यू सी डायग्राम? मैंने क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी लिखा है, एफ स्क्वायर। अगर ये डिफाइंड है, अगर ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट है, एफ सर्कल है, तो हम इसको एफ स्क्वायर भी लिखेंगे। आगे चल के फंक्शन एफ स्क्वायर का मतलब होगा एफ सर्कल है, जी स्क्वायर का मतलब होगा जी सर्कल जी, ऐसा। ओके, नाउ कैन यू टेल मी, मुझे देख के बताओ सब कुछ सेम है, यहाँ ये सेम है, यहाँ ये सेम है, यहाँ ये, मतलब ये सब डिफाइंड है, हाँ या नहीं? Yes, sir. हाँ सर। Isn't it? मतलब मैं कहीं से भी किधर भी जाऊं कुछ भी डिफाइंड होगा। तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, पहले एफ सर्कल जी करते हैं। एफ सर्कल जी मुझे पहला चेक करना है, एफ सर्कल जी के लिए मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको हर प्रॉब्लम में आपको समझ में आना चाहिए डिफाइंड है नहीं है। जी, जी से स्टार्ट है, जी से स्टार्ट मतलब एफ से स्टार्ट है, लेकिन फंक्शन ऐसा होता है ना, जी से फंक्शन स्टार्ट होगा, एफ पे एंड होगा, मतलब स्टार्ट एफ से हो रहा है, लेकिन हमेशा याद रखना जी से स्टार्ट हो रहा है, जी का डोमेन से स्टार्ट होगा। तो जी पहले लिख लो, जी सर आपका वॉइस म्यूट हुआ है। ओके, अच्छा ये डिफाइंड है। अभी ये डिफाइंड बोलने के लिए क्या करेंगे आप, कोडोमेन ऑफ जी इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ। ओके, तो ये आपने डायग्राम आपके लिए ड्रॉ किया है, मतलब ये डायग्राम क्यों ड्रॉ किया, आपको समझने के लिए। बट जब भी डेफिनेशन वाइज लिखना है तो ऐसा लिखने का, कोडोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ।
So therefore F circle G सो ये समझा आपको। therefore मैं एक सॉल्व करके देता हूं और बाकी का सब आप कर लेना। चाहिए तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये भी सेम ही है। F से स्टार्ट होगा R2R, F से स्टार्ट होगा R2R, तो F सर्कल F55 ऐसा। ओके, तो ये डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये समझा, यहां तक समझा सबको? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो कोई मुझे बताएगा इट इज डिफाइंड एंड इज सच दैट क्या है F सर्कल G? F सर्कल G of H of X is same as F of Gx। अब बताओ, फंक्शन बताओ। दो मेथड है। दो मेथड कैसा है? G of X या तो पहले ऑपरेट करो या फिर डायरेक्टली G of X की जगह पे सी F of है ना, ये अगर Y है सपोज, तो ये F of Y है। F of Y तो X की जगह पे Y रहता तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होता ना। समझ में आ रहा है? अगर ये Gx की जगह पे Y होता तो F of X, X की जगह पे Y है सपोज, तो F of Y इज y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 हो जाए। तो आप Yes, sir. ये X की जगह पे Gx आ गया, X की जगह पे Gx आ गया, तो X की जगह पे Gx लिख लेगा, तो Gx होल स्क्वायर माइनस Gx प्लस 1। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस। F of X, X की जगह पे क्या है? Gx है, तो Gx स्क्वायर माइनस Gx प्लस 1। समझा? यहां तक समझा? F of X क्या है? X स्क्वायर माइनस x प्लस 1, बराबर। F of Y क्या होगा? F of A क्या होगा? A square plus तो 1. F of Gx लिखा है, तो मतलब A के जगह पे Gx है, A के जगह पे Gx है, तो Gx लिखो ना ऐसा। समझ में आ रहा है कुछ? Okay, sir. समझा? ओके, तो कैन हाँ, F of X का मतलब आपको F of X का इमेज पता था, तो अभी X का इमेज पता था, तो Gx का इमेज क्या होगा? अंडर फंक्शन F, X का इमेज अंडर F इज दिस, तो Gx का इमेज अंडर F विल बी व्हाट? तो Gx स्क्वायर माइनस Gx प्लस 1। अभी समझा? ओके, अब व्हाट इज Gx? G of X क्या होगा? X स्क्वायर, तो G of X X स्क्वायर, G of X X स्क्वायर होगा, G of A इज A स्क्वायर, तो G of X इज X स्क्वायर, लेकिन Gx इज X स्क्वायर, लेकिन Gx का स्क्वायर है ये, तो Gx का स्क्वायर, Gx क्या है? X स्क्वायर, Gx क्या होगा? X स्क्वायर प्लस 1। तो आंसर इज x raised to 4 minus x square plus 1, ऐसा है। So this is your final answer, G F circle G of X. F circle G of X is x raised to 4 minus x square plus 1, and F circle G कहां से स्टार्ट हो रहा है? R से स्टार्ट, for every x belongs to। तो ये हमने एक फंक्शन ड्रॉ बताया। चलो बाकी का फंक्शन आप ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। स्टॉप हियर। Recording Okay, it's stopped. time up. ओके, ट्राई करो, और बहुत सारे फंक्शन करेंगे। ये पहला ही फंक्शन किया है ना, तो अभी प्रैक्टिस नहीं किया है। अभी जी सर्कल एफ का थोड़ा अलग आएगा ना फॉर्मूला। हाँ, समझ गया ना? इसका अलग मेथड भी कर सकते हैं ना, पहले जीएक्स को अप्लाई करो इधर, तो नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा तभी देखते हैं। नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी। सो आई विल स्टॉप दिस, एंड द मीटिंग। आप रीजॉइन करो, मेरे को अटेंडेंस के लिए अलग चाहिए।